Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study Indian culture. So let's start the lecture. See, Indian culture is the unique culture of the world. Indian culture is known for tolerance, peace, non-violence and unity in diversity. Also, combination of materialism and spiritualism is the unique feature of Indian culture. Indian culture is as multifaceted as human life. It reflects the intellectual and social aspect of human being. Also, Indian culture reflects the aesthetic and spiritual feelings of human life. Also, Indian culture is the oldest culture, right? So Indian culture is oldest culture and Indian culture has most important role or most important place among many cultures of the world. For an example, Babylonia, Egypt and Greece. Also, the distinctive feature of Indian culture is antiquity, because over the period of time, other or different cultures of the world have lost their relevance, but over the period of time Indian culture grew, right? Indian culture grew and Indian culture has an important place at the present time in the world, because in Indian culture development of humanity, right, development of humanity is taken as the ultimate goal. तो जो इंडियन सोसाइटी है उसमें, राइट, इंडियन सोसाइटी में किसी लाइफ के एक एस्पेक्ट को फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट को अल्टीमेट गोल माना जाता है, राइट. सो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज बीन द अल्टीमेट गोल ऑफ Indian culture. Also, Indian culture, there is a philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. Therefore, Indian culture, the philosophy of Indian culture is the welfare of the world, right? Welfare न केवल इंडिविजुअल का वेलफेयर हो, सोसाइटी का वेलफेयर हो, बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी का वेलफेयर हो, राइट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफी ऑफ इंडियन कल्चर इज वासुदेव कुटुंबकम, विच मीन्स दैट वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, राइट. दुनिया में जितने भी लोग हैं और पूरी दुनिया का भला हो. सो वासुदेव कुटुंबकम इज द यूनिक फिलोसफी ऑफ इंडियन कल्चर एंड इन इंडियन कल्चर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इज कंसिडर्ड एज अल्टीमेट गोल, राइट. और इंडियन कल्चर की एक और खास बात यह है कि इंडियंस हैव नेवर एडॉप्टेड वाइगॉटरी फ्रॉम अदर कल्चर्स, राइट. दुनिया के जितने भी डिफरेंट कल्चर हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट और वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए जितने भी अच्छे एस्पेक्ट थे, राइट, उन गुड प्रिंसिपल्स को जो है इंडियन कल्चर्स में अडॉप्ट कर लिया गया है. सो इंडियन कल्चर हैव अडॉप्टेड गुड प्रिंसिपल्स फ्रॉम द अदर कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड. Also, if we talk about India, then India is a vast country and there is a diversity in India based on language, right, food, ethnicity, different religion, caste. But despite this, India is one country from Kashmir to Kanyakumari, right. और इंडिया में म्यूजिक है, लैंग्वेज है, आर्ट है, राइट, उनमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बट डिस्पाइट दिस देयर इज अ यूनिटी इन इंडिया. तो जो हमारा इंडियन कल्चर है, राइट, जो हमारे इंडियन कल्चर की दिस डिस्टिंक्टिव फीचर एंड दिस यूनिकनेस ऑफ द इंडियन कल्चर इज द इनवैल्यूएबल हेरिटेज फॉर अस, राइट. देयरफॉर डिफरेंट स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इंडियन कल्चर को नेशनलिज्म के लिए, टॉलरेंस के लिए, जेनरोसिटी के लिए, कर्मा, पीस, नॉन वायलेंस, राइट, एंड पेनेंस, राइट, ऑप्टिमिज्म, इनके लिए जो है सराहा है, राइट. नाउ वी विल स्टडी फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, right, and here 11 marker question can be asked. What are the features of Indian culture? So जितने भी Indian culture के characteristics हैं, features हैं, we will study in depth, right. So we understand the features of Indian culture. So Indian culture is having many features and we will discuss some important features of Indian culture. See, Indian culture is known for its flexibility, right, tolerance and
Indian culture is the combination of spiritualism and materialism, right? There is a homogeneity in Indian culture, compatibility, right? Unity in diversity, importance of religion, patriotism, welfare of all, antiquity and continuity, right? So these are the features of Indian culture. We will discuss one by one, and I would like to tell you that if see here 11 marker question can be asked, what are the features of Indian culture, right? Or this may be asked as a 5 marker question, right? State the tolerance feature of Indian culture. Or it may be asked, right, Indian culture is the combination of spiritualism and materialism. This question can be asked or may be asked as a 5 marker question. Or maybe Indian culture has antiquity. This can be asked as a 3 marker question, right? So यहाँ से 3 नंबर का, 5 नंबर का और 11 नंबर के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, right? Now we will study the features of Indian culture one by one. First हो जाएगा antiquity. See, we have discussed that Indian culture is the oldest culture of the world. So Indian culture is the oldest culture of the world, right? When different culture or many culture of the world were passing through the infancy stage, at that time Indian culture have passed or crossed the maturity stage. For example, we can understand through the Bhimbetka rock painting, right? So Indians were known to have Bhimbetka rock painting. Also we have got the footprints obtained from the Narmada Valley region, and another example is Indus Valley civilization, right? So ये आपको पता होगा कि when Indus Valley civilization excavated, so many British scholars have shown that जो Indus Valley civilization था, right, Indus Valley civilization था, this was urban civilization, right? So we can assume that before 5000 years ago, right, there was a urban civilization in India, right? So on the basis of available evidence, we can say that Indian civilization is older than Rome and Greek culture, and Indian civilization is contemporary to Egypt and Babylonia, right? Babylonia culture, right? So we can say that Indian culture is oldest culture of the world, and Indian culture before 5 years ago there was urban civilization or urban culture in India. Second, continuity. See, there is a continuity in Indian culture. See, many cultures of the world, such as the culture of Rome, Greek, Babylonia, etc., over the period of time have failed to maintain their identity and have lost their relevance and have lost their existence. But if we talk about Indian culture, then over period of the time Indian culture grew, developed, and Indian culture has existence at present now. So we can say that many cultures of the world have failed to maintain their identity, right? But at present Indian culture is alive in its original form even after the thousands of years, right? वहीं इंडिया में हम अगर देखें, so in ancient time rivers, Vanyantree, sun and other god and goddess, right, were worshipped in ancient time, and at present we are worshipping rivers, Vanyantree, sun, god and goddess at present. So this shows that कि जो परंपरा प्राचीन काल में थी वो परंपरा आज भी बनी हुई है, एंड द रिलेवेंस ऑफ गीता एंड उपनिषद, right? So the relevance or message of Gita and Upanishad have been the source of inspiration of human being for thousands of years. और गीता और उपनिषद का जो relevance है वो जो फ्यूचर है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, राइट? तो इन सब से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कल्चर है, राइट, हमारा जो कल्चर है उसमें कंटिन्यूटी है, राइट? प्राचीन काल में जो भी रिचुअल्स थे, राइट, जो भी रिचुअल्स थे, जो हमारा इंडियन कल्चर था वो आज भी है और फ्यूचर भी रहेगा. सो वी कैन से दैट देयर इज अ कंटिन्यूटी इन इंडियन कल्चर. थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड टॉलरेंस.
See, Indian culture is relevant even today because of its tolerant nature. See, Indian culture is tolerant, right? Indian culture have been attacked by foreign invaders, right? Greeks, Huns, and Muslim invaders, Turks invaded India, and this dismantled Indian culture as well. But Indian culture is tolerance and Indian culture has flexibility, right? और इन दोनों ही फीचर्स की वजह से, because of tolerance and because of flexibility, right, Indian culture is relevant and Indian culture is in original form even today, right? So because of many foreign attacks or foreign invaders have destroyed our culture, but because of tolerance and because of flexibility, right, जो इंडियन कल्चर है, राइट, वो इंडियन कल्चर का जो जितनी भी वैल्यूज हैं और इंडियन कल्चर का जो रिलेवेंस है वो आज भी बना हुआ है. फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिटी, राइट. सी, इफ वी टॉक अबाउट यूरोपियन कल्चर, देन इन यूरोपियन कल्चर मटेरियलिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर देयर. वहाँ पर मटेरियलिज्म को प्रायोरिटी दी जाती है, लोग फिजिकल प्लेजर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंड देयरफॉर दे कंज्यूम different type of goods and services. But in India there is a spirit of spirituality as well, right? India में भी materialism के साथ साथ spiritualism को भी importance दिया जाता है, right? through our ashram system and through Purushartha, there is a unique concept in Indian culture which is the combination of spiritualism and materialism. If we talk about the four purusharthas, then dharma, arth, काम, right? So dharma, arth and काम, through these purusharthas one can enjoy his life and one can enjoy materiality, right? तो इन तीन पुरुषार्थास के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो मटेरियल लाइफ है उसको एंजॉय कर सकता है. तो वही जो फोर्थ पुरुषार्था है, दैट इज धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. मोक्ष के माध्यम से ही कैन गेट द सॉल्वेशन और ही कैन गेट मोक्षा एज वेल. सो वी कैन से दैट हमारा जो आश्रम सिस्टम है, आश्रम सिस्टम में भी अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा, राइट. देन उसके बाद में गृहस्थ आश्रम हो जाएगा. तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर सकता है और ब्रह्मचर्य आश्रम में वो अपने आप को फ्यूचर के लिए डेवलप कर सकता है. गृहस्थ आश्रम में वो मटेरियल लाइफ को जी सकता है. फिर उसके बाद में जो वानप्रस्थ आश्रम है, उस वानप्रस्थ आश्रम में ही कैन कंट्रोल हिज सेंसेस, राइट. इसका मतलब ये है कि जो शुरुआती दो आश्रम हैं इसमें व्यक्ति अपनी मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर सकता है. वानप्रस्थ आश्रम में वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है. और उसके बाद में जो संन्यास आश्रम है, इस संन्यास आश्रम में वन कैन अटेन द मोक्षा. मतलब ऑन द पाथ ऑफ मटेरियलिज्म वन कैन फॉलो द स्पिरिचुअलिज्म एंड कैन गेट द मोक्षा और salvation from his life. So we can say that there is a unique concept of coordination or combination of spirituality and materiality in Indian culture, right? Fifth is receptivity of Indian culture, right? वर्ल्ड के जितने भी डिफरेंट कल्चर हैं उनके जो जितने भी गुड प्रिंसिपल्स हैं we have included in our culture. For an example, right? वर्ल्ड में जितने भी जो गुड प्रिंसिपल्स हैं, राइट, जैसे मॉडर्न क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी हो जाएगा. सो वी हैव एडॉप्टेड डेमोक्रेसी, राइट, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी. तो जो इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ये जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर अवेलेबल इन आर मॉडर्न इंडियन कल्चर. सो देयर इज अ रिसेप्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर उसके ओरिजिनल फॉर्म में भी है एंड वी हैव एडॉप्टेड न्यू डिफरेंट or modern ideas of the world. Next is adaptability. See, Indian culture is adaptable. See, even after different and many invasions, right, Indian culture is in its original form, right. Turkish हो जाएंगे, फिर हुन्स हो जाएंगे, सिथियंस हो जाएंगे. दे इन्वेटेड इंडिया, राइट, दे लूटेड इंडिया और उन्होंने यहाँ का जो कल्चर है उसको भी डैमेज किया. परंतु इंडियन कल्चर
में कुछ ऐसे फीचर हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस इंडियन कल्चर ने अपने आप को एडॉप्ट किया, राइट इसलिए यू विल फाइंड मैनी सिविलाइजेशन सिंबल्स और मैनी फिलोसफीज of different culture in Indian culture. Next is unity in diversity, right? The unique feature of Indian culture is unity in diversity. See, in India there are different type of diversity. For an example, language, right? Language, different sections, different religion, different caste, right? And different geographical areas. Despite this diversity, India is one, right? If we talk about India, then from Kashmir to Kanyakumari, India is one. So this shows that this shows the unity in Indian culture. So unity in diversity, right? We will study this topic as we will prepare for this as 11 markers. So इसी लेक्चर में हम इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे बिकॉज यहाँ से जो है 11 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ धर्मा एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन. सी, इंडियन कल्चर में धर्म को और रिलीजन को इंपॉर्टेंस दिया गया है, right? I told you earlier that Indian culture is the combination of spiritualism and materialism. So Indian culture में materialism को भी प्रेफरेंस दिया जाता है, साथ ही साथ धर्म का भी इम्पोर्टेंस रोल है, right? इंडिया में कई रिचुअल्स हैं और कई इंस्टीट्यूशंस हैं वो कि रिलीजियस वो की धार्मिक रूप से क्या है इम्पोर्टेंट है. For an example, marriage. So marriage institution in Indian culture has a religious importance also, right? Different religious जो organizations है, right? उनमें भी religion का या धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, right? जैसे अगर हम बात करें तो in earlier time the education was being provided from gurukuls. तो अर्लियर जो एजुकेशन था उसमें शास्त्र भी जो थे पढ़ाए जाते थे और रिलीजियस जो एजुकेशन था वो अर्लियर टाइम में प्रोवाइड कराया जाता था. इसके साथ ही इन इंडियन रिलीजन जो है अवतारवाद, देयर इज अ थ्योरी ऑफ अवतारवाद, राइट? अवतारवाद का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में जब कभी भी क्राइम्स बढ़ते हैं, राइट, या जो सिंस इंक्रीज होते हैं, सो उस समय पे जो गॉड है, राइट, गॉड इज इनकारनेटेड, राइट, और गॉड जो है इस यहाँ पर सोसाइटी में टू मेंटेन धर्मा, पीस, राइट, एंड नॉन वायलेंस, उसके लिए भगवान जो है अवतारवाद लेते हैं, राइट. सो इंडियन जो कल्चर है उसमें धर्म का, रिलीजन का, राइट, इंपॉर्टेंट प्लेस है. नेक्स्ट इज principle of peace and non-violence. See, Indian culture is known for peace and non-violence, and in India the two religion, right, Jain and Buddhism, right? So Buddhism and Jainism, right, Buddhism and Jainism have propagated the theory of peace and non-violence, right? और इसके अकॉर्डिंग जो है दुनिया में नॉन वायलेंस की थ्योरी को अपनाना चाहिए और पीस को जो है प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि पीस और नॉन वायलेंस से ही जो है इंडिविजुअल का या सोसाइटी का वेलफेयर हो सकता है या फिर नेशन का क्या हो सकता है, वेलफेयर हो सकता है. अशोका मौर्यन ने भी जो है पीस एंड नॉन वायलेंस को प्रोपोगेशन के लिए जो है फॉरेन कंट्रीज में अपने एम्बेसडर्स को भेजे थे. इस तरीके से अगर हम देखें, सो द थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस provided by Jainism can be said to be unbroken weapon, right, unbroken weapon in the increasing peace and friendship in the whole world. Next is spirit of universal brotherhood. See, there is a slogan, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काश्चित् दुःख भोगा भावेत्, right, which means that everyone should be happy, right, everyone should be happy, everyone should be healthy, and this philosophy is inherent feature of Indian culture. और इसी की वजह से डिफरेंट जो जितने भी डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनमें इंडियन कल्चर को जो है प्रेस किया जाता है और इंडियन कल्चर्स को जो है इम्पोर्टेंस दिया जाता है. और इंडियन सोसाइटी
जो है वेलफेयर ऑफ द बर्ड, राइट, और वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग के लिए जो है जानी जाती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, राइट, इन इंडियन सोसाइटी। सो इंडियन कल्चर में जो प्रिंसिपल ऑफ कर्मा है, दिस इज आल्सो द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आप जैसा कार्य करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो गुड डीड है और जो बैड डीड है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वन कैन गेट अ रिजल्ट अकॉर्डिंग टू हिज गुड डीड एंड बैड डीड। और इसके साथ ही, राइट, इसके साथ ही जैसे कई बार एक कहावत की जाती है कि कोई व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है बट ही गॉट एक्सीडेंट एंड ही डेड। सो यू विल टेल मी, सर उसने तो कुछ बुरा काम किया ही नहीं, उसके बावजूद एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। सो देयर इज अ यूनिक फिलॉसफी विच इज इन इंडियन कल्चर, राइट। और वो फिलॉसफी क्या है कि ही वुड बी रीबर्थ अगेन, और हो सकता है उसको जो अगला रीबर्थ होगा उसमें उसको कुछ अच्छा जो है उसके साथ में होगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू गुड डीड एंड बैड डीड जो है बर्थ जो प्रोसेस है वो अगेन अगेन क्या होगी, होती रहेगी, राइट। इफ यू विल डू गुड देन डेफिनेटली फ्यूचर में आपके साथ में अच्छा होगा, एंड इफ यू डू बैड देन डेफिनेटली आपके साथ में भी क्या होगा, फ्यूचर में बुरा होगा, राइट। और जो श्री कृष्ण है उन्होंने गीता में कहा है, राइट, जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें ही जो पूरा का पूरा कर्म का सिद्धांत है ये दिया हुआ है, और जो कर्मा का प्रिंसिपल है वो बहुत ही रिलेवेंस है, आज भी है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ क्या हो जाएगा, टोटलिटी हो जाएगा। सो इंडियन कल्चर में टोटलिटी को जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है, राइट। ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन का फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को जो है टोटलिटी के रूप में माना जाता है, राइट। इसीलिए इंडियन सोसाइटी में फिजिकल एम्पावरमेंट के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में फिजिकल एंड मेंटल, राइट, फिजिकल एंड मेंटल अपलिफ्टमेंट के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में कठोर जो है एजुकेशन दिया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कराए जाते हैं, ताकि जो भी व्यक्ति है वो अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए फिजिकली एंड मेंटली क्या हो जाए, फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग हो जाए। उसके साथ ही फिर वो जो है गृहस्थ आश्रम में अपनी लाइफ को एंजॉय करे, जो भी मटेरियल लाइफ है उसको एंजॉय करे। उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम में, राइट, वानप्रस्थ आश्रम में ही कैन कंट्रोल हिज सेंसेस, और लेटर इन संन्यास आश्रम, राइट, संन्यास आश्रम में ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ही कैन हैव द साल्वेशन और मोक्ष, राइट। तो इस तरीके से हमारे जो इंडियन कल्चर है इसमें प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। क्लियर, इन इंडियन कल्चर जो हमारा कंट्री है, कंट्री को मदर माना जाता है। सो द पीपल ऑफ इंडिया वर्शिप इंडिया लाइक अ मदर। फॉर एन एग्जाम्पल, जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरीयसी, राइट। तो हमारे देश में जो हमारी कंट्री है उसको मदरलैंड के नाम से जो है वर्शिप किया जाता है और रिस्पेक्ट की जाती है। तो हमारे देश में जब कभी भी हमारे देश पर कोई भी अटैक होगा या कभी विपत्ति का संकट होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी, एट दैट टाइम ये प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपनी मदरलैंड की सर्विस के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर भी कर देगा। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल, राइट। दुनिया के डिफरेंट कल्चर में या तो इंडिविजुअल वेलफेयर को फोकस किया जाता है या मटेरियल लाइफ को फोकस किया जाता है, बट इट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर कि हमारे कल्चर में नॉट ओनली वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल बल्कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को प्रेफर किया जाता है, और वेलफेयर ऑफ द ऑल को भी क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब दुनिया का प्रत्येक जीव सुखी रहे और दुनिया का प्रत्येक जीव जो है वो क्या हो, दुख से दूर हो, राइट। इस थ्योरी को जो है वो इस थ्योरी का जो है पालन किया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ये सच में भी है। हमारे इन आर इंडियन कल्चर जो हेल्प है उसको बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इफ़ यू हेल्प पुअर
राइट, आप किसी भी व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर, जिसमें वेलफेयर ऑफ ऑल को प्रमोट किया जाता है। और जो कोई भी व्यक्ति, राइट, जो कोई भी व्यक्ति हु इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, देन डेफिनेटली ही इज प्राइज्ड इन अ सोसाइटी, और उसको सोसाइटी में न केवल प्राइज किया जाता है बल्कि लोग उसके जो भी वर्क है उसको एक्नॉलेज भी करते हैं, राइट। Next we will study unity in diversity of Indian culture. See, unity in diversity of Indian culture. This is the unique feature of Indian culture. And यहाँ से 11 मार्क का जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, इसको हम डिटेल में यहाँ पर जो है समझ सकते हैं। See, Indian culture is based on Kaljai immortal principles of world welfare, right? So हमारे जो सोसाइटी है वो वर्ल्ड वेलफेयर या वेलफेयर ऑफ ऑल की जो प्रिंसिपल हैं उसको फॉलो करती है। इसके साथ ही हमारे देश में कल्चर के क्या है, कई फॉर्म्स हैं, राइट। और इसके साथ ही साथ हमारे देश में डाइवर्सिटी है। फॉर एन एग्जाम्पल सोशल डाइवर्सिटी, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। बट डिस्पाइट दिस देयर इज a unity in diversity which can be proved, right, by these points. The first is unity in geographical diversity. See, India is vast country, or we can say that India is having a vast area, or because of the vast area there is a geographical diversity in India, राइट। जोग्राफिकली हमारे देश में कई एरियाज हैं जिनकी क्लाइमेट, राइट, जिनकी क्लाइमेट और जिनकी जोग्राफी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या है, अलग अलग है। फॉर एन एग्जांपल वी कैन से दैट कि जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर, वेयर इज द साउथ इंडिया, right, South India is known for the production of cashew, right, coffee, cashew, coconut, etc, right। और इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी इंडिया इज अ वन यूनिट, बिकॉज इन आवर कल्चर जो ईच रीजन है, राइट, each region and each geographical region complement each other and becomes dependent on each other. For an example, नॉर्थ इंडिया के जो ग्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं या जो सगर प्रोड्यूस होती है, राइट, वो देश के अन्य जो जितने भी जोग्राफिकल एरियाज हैं वहाँ पर सप्लाई की जाती हैं। वहीं साउथ इंडिया सप्लाइज स्पाइस, कॉफ़ी, कैश्यू, कोकोनट टू नॉर्थ इंडिया। आल्सो अगर हमारे इंडिया में देखें तो जो माउंटेन रेंजेस हैं, राइट, हैं गंगा, यमुना, गोदावरी और जो कई रिवर्स हैं उनको होली रिवर्स माना जाता है और उनको होली रिवर्स पूजा जाता है। आफ्टर ऑल इंडिया को मदरलैंड माना जाता है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन से दैट देयर इज अ यूनिटी इन geographical diversity. Second, in unity in linguistic diversity, right? So there is a huge linguistic diversity in India, right? After 2 kilometer you will find a new dialect और न्यू लैंग्वेज, राइट। तो हमारे इंडिया में हर 2 या 5 किलोमीटर पर जो है दो कोस पर बानी, 5 कोस पर पानी, राइट। तो अगर आप 2 किलोमीटर के डायमीटर को पार करेंगे तो एक न्यू डायलेक्ट फाइंड करेंगे और 5 किलोमीटर पर जो टेस्ट ऑफ वाटर है वो चेंज हो जाता है, राइट। सो देयर आर ह्यूज डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन इंडिया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है 22 लैंग्वेजेस जो है रिकॉग्नाइज्ड है, right? So there are 22 languages in schedule 8 of the constitution. So we can understand there is a huge linguistic diversity in India. Apart from this, इंडिया में linguistic diversity तो है, परंतु language has less lexical variation, right? और इस lexical variation की वजह से काफ़ी सारे जो शब्द हैं, right? काफ़ी सारे जो शब्द हैं वो इन सभी लैंग्वेजेस में क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। इसी वजह से डिफरेंट लैंग्वेज होने के बावजूद आप उन लैंग्वेज को समझ सकते हैं,
right? So we can say that there is a unity in linguistic diversity. Third is unity in religious diversity. See, in India there are many religion, right? या we can say that they जो इंडिया में कई धर्मों को मानने वाले फॉलोवर्स हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया में हिंदू रिलीजन हिंदू धर्म हो जाएगा, देन मुस्लिम रिलीजन, सिख, क्रिश्चियन, राइट? तो इंडिया में डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले फॉलोवर्स जो हैं रिसाइड करते हैं. और ब्यूटी ये है कि सभी जो रिलीजन है, सभी रिलीजन का या सेक्ट का जो एसेंस है वो क्या है? मॉरलिटी है, ट्रुथ है, राइट? फिर सोशल हार्मोनी हो जाएगा, नॉन वायलेंस हो जाएगा. तो इन सभी रिलीजन का जो एसेंस है, राइट, उसको फॉलो किया जाता है. साथ ही साथ इंडिया में जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल हैं, दिवाली, होली, ईद, बैसाखी, राइट, ओणम, these are celebrated together. Therefore, having a religious diversity, there is unity in India. Fourth is unity in ethnic diversity हो जाएगा. सो इंडिया में जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, साथ ही साथ एथनिक डाइवर्सिटी भी है. इंडिया के डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में कई ट्राइब्स के डिफरेंट ट्राइब्स के जो है पीपल रिसाइड करते हैं. साथ ही साथ डिफरेंट जो कास्ट है, डिफरेंट ट्राइब के जो लोग हैं वो रिसाइड करते हैं. साथ ही साथ उनके जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, राइट, और ट्रेडिशंस हैं वो बिल्कुल ही क्या है? अलग है. इसके बावजूद इंडिया में रेशियल जो कॉन्फ्लिक्ट है या अपार्थाइड है, इट इज अब्सेंट, या हम ये कहें कि ना के बराबर है. सो बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ अपार्थाइड और रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, right, we can say that there is a unity in ethnic diversity, right? Fourth is unity in cultural diversity हो जाएगा, right? So इंडिया में इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी भी पाई जाती है. नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, राइट, इनमें डिफरेंट सिविलाइजेशन है, डिफरेंट कल्चर है. फॉर एन एग्जांपल, फोक डांस है, फोक म्यूजिक है, फोक सॉन्ग्स हैं, पेंटिंग्स हो जाएगा, स्कल्पचर हो जाएगा, राइट. ये सभी डिफरेंट प्लेस में इवॉल्व हुए हैं और इनका डिफरेंट रिलेवेंस भी है, राइट. उसके बावजूद जो फोक म्यूजिक है, फोक पेंटिंग है या फोक डांस है, वो ऑल ओवर इंडिया में जो है पसंद किए जाते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, जो किंग व्रतहरि हैं, उनके फोक सॉन्ग्स को जो है छत्तीसगढ़ में भी जो है सुना जाता है, और ये है कहाँ के? मालवा के हैं. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो डिफरेंट फोक डांस है, फोक म्यूजिक है, उनको उस पर्टिकुलर एरिया के अलावा भी डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट पार्ट्स में जो है पसंद किया जाता है और उनको प्रमोट भी किया जाता है. इन दिस वे वी कैन से दैट यूनिटी इन कल्चरल डाइवर्सिटी, राइट. सो इस तरीके से वी हैव स्टडीड यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन culture, right? So if this question is asked as a 11 marker question, then using these points you can write a beautiful answer, right? Now we will study impact of globalization on Indian culture. See, ग्लोबलाइजेशन से न केवल इंडियन कल्चर बल्कि डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड वो भी क्या हुए हैं? इफेक्ट हुए हैं. और ये जो इफेक्ट है मे बी पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट. सो वी विल स्टडी दिस. और यहाँ से 11 मार्कर क्वेश्चन और 5 मार्कर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, right? Impact of the globalization on Indian culture. At first we understand what is globalization. See, globalization is the name of advanced condition of the post modernity on social and cultural basis, right? तो कल्चरल, सोशल एंड कल्चरल बेसिस पर जो एडवांस कंडीशंस है पोस्ट मॉडर्निटी, उसको ही क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है. सो ग्लोबलाइजेशन इज द नेम ऑफ एडवांस कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी ऑन सोशल एंड कल्चरल बेसिस. और ये मॉडर्निटी क्या होती है? देखिए, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, importance of urbanization, social mobility, personal freedom, rational life and behavioral change start increasing, right, or increasing. So
Urbanization, social mobility, personal freedom, rational life, behavioral change start increasing with the development of technology, then this would be known as modernity, right? और इस modernity से ही जो है जो advanced conditions of post modernity हैं on social and cultural basis, उसको ही globalization कहा जाता है, right? Or in other words we can say that when the practical attitude toward the world becomes clear in the form of social and cultural relations between different countries, then this condition is called globalization, right? और globalization जो है एक नेचुरल और वॉलंटरी कैसा है प्रोसेस है। तो इस ग्लोबलाइजेशन का कल्चर पर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या समझते हैं यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट को। सो सी, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जो कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन है वो दृष्टिगोचर हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हमारा जो आर्ट कल्चर है, राइट, हमारा जो कल्चर है थ्रू आर्ट हो जाएगा, लिटरेचर हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा, ये पूरी की पूरी दुनिया में क्या हुआ है, मोबिलाइज हुआ है और पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ है। सो वी कैन से दैट इंडियन कल्चर हैज spreaded all over the world because of the communication, right, or because of the globalization. And Indian culture, Indian folk art, Indian folk music, right, have got a new place at a world level. Second, दूसरा क्या हो जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव बीन इंक्रीज्ड एट अ इंटरनेशनल लेवल, देयरफॉर मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू फॉरेन कंट्रीज फॉर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और जब डिफरेंट लोग इंडिया से दूसरे देशों में गए, सो दे टुक इंडियन कल्चर अलॉन्ग विथ देम। इस तरीके से बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो इंडियन कल्चर है वो ग्लोबली क्या हुआ है, स्प्रेड हुआ है, राइट। तो एक तो कम्युनिकेशन के माध्यम से भी इंडियन कल्चर स्प्रेड हुआ है, इंडियन फिलॉसफी स्प्रेड हुई है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है जिसकी वजह से भी लोग दूसरे देशों में एम्प्लॉयमेंट जो है प्राप्त किया है, उसमें भी इंडियन कल्चर स्प्रेड हुआ है। तीसरा क्या हो जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, राइट, द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, उसकी वजह से इंडियन जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसने अपना इंपॉर्टेंस जो है रीगेन किया है, और इस समय पे हर एक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है। फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर कि जो इंडियन मिडिल क्लास है, राइट, इंडियन मिडिल क्लास का क्या हुआ है, राइज हुआ है, राइट। सो आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन, राइट, द राइज ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, और इंडियन मिडिल क्लास के राइज होने की वजह से ही जो डिफरेंट आइटम्स हैं, राइट, रिलेटेड टू फोक आर्ट हो जाएगा, फोक म्यूजिक हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारा जो आर्ट लिटरेचर है वो स्प्रेड हुआ है। सो एज अ रिजल्ट वी कैन से दैट हमारा जो कल्चर है उसका भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसके साथ ही जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई इंस्टीट्यूशन हैं, राइट, जो कि आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं, राइट, तो ग्लोबल मार्केट में ओपननेस हुई है, और इसके साथ ही जो इंडियन फोक आर्ट है, फोक म्यूजिक है, राइट, और फोक डांसेस हैं, राइट, उनकी भी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ी है, राइट। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से, राइट, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जिसकी वजह से हमारा इंडियन कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है स्प्रेड हो रहा है, राइट। सो दीज वर द पॉजिटिव, राइट, these were the positive impacts of globalization on Indian culture. Now we will talk about the negative impact of globalization on Indian culture. सबसे पहली चीज तो ये है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन कम्युनिकेशन इंक्रीज हुआ है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बेटर हुई हैं, राइट। इसके साथ ही जो मीडिया है, मीडिया का इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया में जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है,
राइट, वेस्टर्न जो लाइफ स्टाइल है वो इंक्रीज हो रही है। सो पीपल ऑफ इंडिया आर फॉलोइंग वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, चाहे क्लॉथ हो, चाहे लैंग्वेज हो, या फिर जो आइडियोलॉजी है वो वेस्टर्न बेस्ड होती जा रही है। इससे हम कह सकते हैं कि जो इंडियन फिलॉसफी है वो इस समय पे क्या है, ट्रबल में है। सी, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कैपिटलिज्म है, राइट, बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म जो है, इसकी वजह से भी इंडियन कल्चर जो है, इंडियन कल्चर इज इन ट्रबल। बिकॉज कैपिटलिज्म क्या कहता है, कैपिटलिज्म को जो है, कैपिटलिज्म हैज अ प्रॉफिट, मोटिव ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट कमाने के लिए कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हॉलीवुड के माध्यम से, प्रिंट मीडियम के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों में पेनिट्रेट किया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कैपिटलिज्म मार्केट क्रिएट करने के लिए लोगों की जो आइडियोलॉजी है उसको चेंज करता है, राइट। उदाहरण के लिए न्यूज़पेपर के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से, और जो सेमिनार हैं उनके माध्यम से आपको किसी भी पर्टिकुलर आइटम के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बारे में सबसे पहले आपको अवेयर किया जाएगा, राइट। और जब वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी तो उसके प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे और वो बेचे जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में हुआ था तो यूरोपियंस ने, या हम ये कहें कि ब्रिटेन ने जो मॉडर्न एजुकेशन इंडियंस को प्रोवाइड किया था, उसका उद्देश्य इसमें नहीं था कि इंडिया एक कॉलोनी है तो हमें इंडियन को जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, राइट। ब्रिटिश हैड द मोटिव दैट इंडिया में एक मार्केट क्रिएट करना है ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं उनको खरीदने वाले जो हैं इंडिया में तैयार हो जाए, राइट। और ये आज भी हो रहा है। आज भी हमारी जो ज्योग्राफी है, हमारी जो ह्यूमन नीड है, हमारी नीड हमारी ज्योग्राफी से या हमारी जो लोकल सिचुएशन है उससे मैच नहीं करती है, राइट। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, उसके बावजूद हमारा लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, जो हमारी क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेट इज अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट या हॉट क्लाइमेट है, इसलिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, राइट। क्योंकि सीधी सी बात है, इफ देयर इज अ हीट, तो हीट से बचने के लिए यू वुड हैव टू वियर क्लॉथ्स, राइट। ऐसे क्लॉथ्स पहनने की जरूरत है जो कि ओपन हो ताकि आपको कम से कम गर्मी लगे। वही अगर हम वेस्टर्न की बात करें, सो दे हैव कोल्ड क्लाइमेट, देयरफॉर दे वियर कोट, कोटी, कैप, टाई, सॉक्स, राइट। और मैं सरप्राइज होता हूं कि इंडिया में जब कभी भी कोई भी मैरिज फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो लोग अप्रैल मई में कोट पहनते हैं। तो मतलब ये एक मूर्खता वाली बात है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे दिमाग में ये इट इज़ इन आवर माइंड सेट दैट इफ़ यू विल बियर धोती कुर्ता एंड इफ़ यू विल बियर ट्रेडिशनल जो भी आपकी ट्रेडिशनल क्लॉथ्स है, अगर आप उनको वियर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट अ जेंटलमैन। बट इफ यू वियर जो है कोट, पैंट, शूज, देन डेफिनेटली यू वुड बी कंसिडर्ड एज अ जेंटलमैन। तो इस तरीके की जो आइडियोलॉजी है ये सबसे पहले पेनिट्रेट की जाती है ताकि एक मार्केट क्रिएट हो और फिर वहाँ पर जो है सामान बेचे जाएं। तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट, अगर आप जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है वो भारत में स्प्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से जो इंडियन कल्चर है वो इंटरवल में है। सेकेंड यहाँ पर दूसरा हो जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंज्यूमरिस्ट कल्चर है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से भी इंडियंस, राइट, इंडियंस आर कंज्यूमिंग डिफरेंट आइटम्स। और सवाल इसमें नहीं है, राइट, हमारे कल्चर में भी है, वी शुड एंजॉय आवर मटेरियल लाइफ, बट जो है ब्लाइंड इमिटेशन नहीं होना चाहिए, राइट। जो भी चीज़ें हमारी अकॉर्डिंग टू लोकल सिचुएशन, हमारी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग या हमारी जो लोकल नीड्स है उनको अगर फुलफिल करती हैं, देन डेफिनेटली वी शुड यूज द आइटम्स और गुड्स एंड प्रोडक्ट। बट अगर हम ब्लाइंड इमिटेशन के माध्यम से जो है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारा कल्चर भी क्या होगा, कल्चर भी जो है कल्चर क्या होगा,
नीचे आएगा, ये कल्चरल लॉस्ट होगा। उसके साथ ही हम इंपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो इट वुड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी आल्सो। थर्ड इज जो वेस्टर्न कल्चर है, राइट, वेस्टर्न कल्चर जो है इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से कल्चरल जो होमोजेनिटी है वो पूरे के पूरे दुनिया में जो है इस समय पे दिख रही है। फॉर एन एग्जांपल लैंग्वेज, राइट, अगर हम देखें तो इंडिया में 22 लैंग्वेजेस हैं, डिस्पाइट दिस इंग्लिश इज प्रेफर्ड, और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो दुनिया के नॉट ओनली इन इंडिया बट डिफरेंट कंट्रीज में भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर किया जा रहा है, राइट, चाहे कपड़े हो, चाहे मूवी हो, चाहे खाना हो, फॉर एन एग्जांपल पिज्जा हो जाएगा। फिर तो इस तरीके से जो है कल्चरल ह्यूमनाइजेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी जो दुनिया के जितने भी कल्चर हैं वो डेंजर में है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सी एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, राइट, कम्युनिकेशन टूल्स इवॉल्व हो रहे हैं, राइट, मीडिया जो है मीडिया इवॉल्व हो रही है, उसकी वजह से जो इंटरटेनमेंट है इसका भी ह्यूमनाइजेशन हो रहा है, राइट, और इंटरटेनमेंट का ह्यूमनाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से जो फॉरेन या हम ये कहें कि जो इंटरनेशनल मूवीज़ हैं, इंटरनेशनल नोवेल हैं या इंटरनेशनल जो इंटरटेनमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, वी आर कंज्यूमिंग दैट। उससे हो क्या रहा है, उससे हमारा जो ट्रेडिशनल और लोकल, हमारे जो लोकल एंड ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और सीधी सी बात है, अगर इंटरटेनमेंट के जो ट्रेडिशनल एंड इंडिजीनियस जो मीन्स है अगर वो क्या हो जाएंगे, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर उनका रिलेवेंस समाप्त हो जाएगा, तो सीधी सी बात है इट वुड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एज वेल, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे देश में हमारे इंडियन कल्चर को प्रमोट करेंगे सो डेफिनेटली इंडिया में जो फोक डांस है, फोक कल्चर है, फोक म्यूजिक है, राइट, फोक और जो ट्रेडिशनल जो कल्चर है या फिर जो हमारे इंडिजीनियस मूवीज हैं, राइट, अगर उनका प्रमोशन होगा सो डेफिनेटली जो लोकल लेवल के आर्टिस्ट हैं दे विल गेट अ जॉब, राइट, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। परंतु ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो क्या रहा है, कम्युनिकेशन टूल्स इंक्रीज हो रहे हैं और इससे कल्चरल होमोजेनिटी जो है इंक्रीज हो रही है। इस वजह से जो फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट हैं या इंटरटेनमेंट की जो प्रोडक्ट हैं, राइट, वो भी अपना वर्चस्व भारत में जो है स्थापित कर रहे हैं। फिर जो इकोनॉमी है, हमारी जो मार्केट इकोनॉमी है वह भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इसी वजह से इंडियन इकोनॉमी में जो फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज हैं, राइट, उनकी भरमार है और उसकी वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, राइट, वो अपना प्रेजेंस खोते जा रहे हैं, या जो ट्रेडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं दे आर लूजिंग द ग्राउंड, राइट, और इससे हमारी जो लोकल गुड्स एंड सर्विसेज हैं या हम ये कहें कि इस पर भी क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जैसा हमारा कल्चर रहेगा वैसे ही हमारी आइडियोलॉजी रहेगी, फिलॉसफी रहेगी, उसी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज को वी विल कंज्यूम, उसी तरीके की हमारी लाइफ स्टाइल होगी। और अगर हम इंडियन कल्चर को प्रमोट करेंगे सो डेफिनेटली इसका हमारी इकोनॉमी पर भी क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, right? So we have studied Indian culture. In next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.